हाँ ठीक है, विजिबल। Sir, is it visible, sir? हाँ, विजिबल विजिबल। Okay. क्या रिमूव कर लीजिए, जब स्टार्ट करें तब आप आपका स्टार्ट कर देंगे। Okay, sir. आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। गौरव शर्मा जी, अ, अपन किसान मित्र वेबिनार स्टार्ट करते हैं। या ऑडिबल? Yes, sir. You are audible. A very good morning to one and all present here. First of all, I request all the non-speaker to keep their mic on mute. Let the speaker complete a session, and we will have a separate question and answer round at last. I, Gajjan Singh Verma, on behalf of Chaudhary Charan Singh National Institute of Agriculture, Marketing, Jaipur, welcome you all to the Kisan Mitra webinar series on agricultural technology for marketing, organized by CCS Niam Jaipur, uh, in partnership with Office of the Principal Scientific Advisor, Government of India. Uh, CCS NIAM, National Institute of Agriculture Marketing, Jaipur, is an autonomous organization established under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, to cater various agricultural related aspects such as training, research, consultancy, education in agriculture marketing. CCS NIAM is also organized globally as the Center of Excellence in Southeast Asia. Kisan Mitra, Friends of Farmer, is an initiative by Principal Scientific Advisor Office in partnership with Chaudhary Charan Singh National Institute of Agriculture Marketing, Jaipur. The objective of this initiative is to bring technologies to farmer and reverse migrants who have moved rural due to the impact of COVID-19. Under this initiative, more than 1,000 technologies have been identified, which are supported by ICR institution, NABARD, Ministry of Rural Development, ISRO, and Gates Foundation. On the supply side of the technology, there are innovators, entrepreneurs, researchers in academic and research institutions talking about this technology, and the webinar participants being on the demand side, who are typically agribusiness enthusiasts, government functionaries, agribusiness companies, and other agri-business stakeholders who are need the agri-technologies. And now moving further, I would like to introduce our today's speaker, Mr. Gaurav Sharma. He is a founder and director of Better Milk Private Limited. Gaurav, he is a Gaurav Sharma from Gurgaon, Haryana. He completed BSc Agriculture and now pursuing MBA Agribusiness. Mr. Gaurav Sharma, I would like to invite Mr. Gaurav Sharma to take a session on efficient management of dairy farms. Over to you, Mr. Gaurav Sharma. Thanks a lot, sir. So I would be very much thankful to the NIAM team and so giving me such opportunity for delivering a lecture on dairy management.
So first of all, I would like to invite all the participants for, and I would thank them for coming to listening to the webinar. So firstly, I will share my slide. I hope you all can see the slides. Okay, visible. Okay. So we are into today we are onto the platform. So we will be discussing about the agri as the session name is Kisan Mitra. So we'll be discussing about the Kisan, how we can help the farmer in a betterment of his life or his lifestyle. So हमारा आज का फोकस रहेगा कि हम डेयरी और एलाइड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो हमारा क्या है, जैसे स्टार्टिंग से ही हम देखते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी हम आज भी इसको बोलते हैं। पर जो आज के सिनेरियो में हम बात करें तो डेयरी एक ऐसा प्रोफेशन है जो अमूल जैसी कंपनी जैसे कोऑपरेटिव है, वो आज भी इस कोविड की सिचुएशन में भी 40% ग्रोथ के साथ उसने रिटर्न किया है इसमें। तो so I will be discussing more about the dairy management, how the farmer can do the management in a betterment of the his dairy farm. So first of all, I will be discussing about the management, how the management should be done, and after that I will be discussing about the dairy market and the market scenario, how the market is shifting. So coming on to the management side, so what is dairy management? Dairy management starting from the selection of the breed, the breeding that is called at the removal of the male calves or the heifers we can say, and feeding the quality of the feed which we are providing to the animal, and after that there is heeding, which is the proper inspection and the looking after the animals. So this is the four essential part of the management of the dairy. So breeding the as per the breed we are selecting. So as our production is. जैसे भी हम ब्रीड कोई भी जैसे चूज करते हैं, स्टार्टिंग में फार्मर चूज करता है तो उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्शन है वो कब कंसीव करती है, हर चीज का उसको ध्यान रखना होता है। तो ब्रीडिंग का सबसे होता है कि वो कितना मिल्क प्रोडक्शन उसका है, 15 से 20 किलो है, 8 से 10 किलो है। तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट करने के लिए तो ब्रीड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे पहले ब्रीड का सिलेक्शन करना। सेकंड जो पॉइंट आता है, एसेंशियल पार्ट है लाइव स्टॉक के लिए, वो है वीडिंग। क्योंकि हम डेयरी फार्मिंग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन हो, या हमारा जिसमें मिल्क प्रोडक्शन की वजह से हमारा कुछ जो फाइनेंशियल हेलो Yeah, audible, sir. Continue. देयर इज सम नॉइस कमिंग सो कैन यू म्यूट द पार्टिसिपेंट प्लीज। I request to all the participants, please unmute your mic before you are disturbing. Hello, so we will carry on with it, so it won't take much time. So weeding is the removal of the male calf who is not in the good situation, so we cannot get good outcome from it. So we should remove the male calf or the heifer from the herd. So coming on to the feeding part, this is the most essential part, and this is the 60% where our dairy management should be looking after. So हमारा हमारा I think there is someone Amar Singh. I think Yeah, I request to all the participants, please unmute your mic. So, Mr. Yeah, Mr. Amar Singh. can you mute him please? Yeah, not done. Technical issue. Okay, no issue.
please continue, Sharma ji. Okay, sir. So feeding part, the 60% of the dairy management system is basically based on the feeding part. So what जैसा कि जानवर खाएगा उसी से उसकी हेल्थ है, उसका नेक्स्ट काफ साइकिल है, कंसीव कैसे होगी, हेलो, हर चीज का उसी पे डिपेंड करेगा। तो हाँ इस चीज से हर आप बोल। सबसे पहले जो बात है हमारे ड्यूटी पे हूँ मैं। एनिमल के डाइट में जो सबसे 5 एसेंशियल चीजें होती हैं, तो सबसे पहले आती है कार्बोहाइड्रेट्स, विच कम्स फ्रॉम द, जो हम उनको डालते हैं, चारा हो गया, खल जो कॉटन सीड हो गया, या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल केक्स। सेकेंड वन इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कम्स फ्रॉम द fodder, green fodder, that is like lucerne, bercine and all. So there are fats, energy sources and the mineral mixture the animal is required. So there is should be a balanced diet for the animal, so he can get we can get the more outcome from it. So the heeding is the one of the main component. So in the heeding part there should be proper inspection of the animal. So when it is giving when it is coming the heat, वो कब कंसीव करने के लिए तैयार हो रही है। जैसे कोई भी फार्मर है, अगर अभी प्रेगनेंसी हुई है किसी भी गाय की या भैंस की, तो वो दोबारा कंसीविंग के लिए आफ्टर 60 डेज या वो 80 डेज के बाद वो कंसीव करने के लिए रेडी होती है। फार्मर को क्या होता है कि भाई अगर वो अभी कंसीव नहीं होगी तो वो 21 डेज की साइकिल के बाद उसको और डिले हो जाएगा, जिससे उसका जो इकोनॉमिक लॉसेज है वो बहुत ज्यादा होंगे। And the fifth point is healthcare, the caring of the hygiene and the sanitation of the farm. So it should be in a good manner. Regular inspection. So inspection, the person who is living or who is into the dairy business, he should be inspecting the animals as well in a good manner. So there should be a proper regular inspection of the animals. So this is our organizations. So before coming to our organization, I would like to make some facts and figure about the how the demand is shifting from the, because in this pandemic situation the dairy was the survival, and there is a lot of production of the powder milk instead of the raw milk. The 1/3 of the raw milk is used, but 2/3 of the production is being turned into the powder milk, because nowadays we are having excess of powder milk in our country. You might have heard about it. And the demand is shifting because due to this corona, and the people are getting more conscious about their health, so there is demand shift toward the packaged products. So there will be lot of packaged products in the coming time. So, and moreover there is no such thing that the customer will not be taking any leverage in the taste. The taste is the non negotiable part. So फार्मर को एक चीज ध्यान जो सबसे ज्यादा रखनी पड़ेगी कि कस्टमर या डिमांड मार्केट की किस तरीके से है। जब डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन होगा तो बेटरमेंट अपने आप होगी। सो coming on to our organization, I am Gaurav Sharma from Better Milk. So we have a holistic approach toward the service providing to the farmers for every and only challenges faced by the dairy farmer at their farm level. So this is our mission, to provide one-stop solution for every and any challenge faced by the dairy farmer at one call. We will be giving them all the facilities. So we will be helping them out in the betterment of the dairy organization, because it is a unorganized sector. Still there is a lot of invention is required in this, and technology intervention is also required in this industry. So these are the few problems that we have encountered with in the dairy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि डेयरी को आज भी एक एलाइड सेक्टर ही माना जाता है, एलाइड। और जो कि हम मानते हैं कि हम जैसे डेयरी है तो रोज दूध का रिटर्न तो हमें वापस मिलता ही मिलता है फार्मर को, पर फिर भी उसको आज भी एक एलाइड सेक्टर है। पर अब भी मतलब जैसे जो अभी बजट आया था उसमें फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए डेयरी सेक्टर के और एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, जिससे वो 15,000 करोड़
वैल्यू एडिशन के काम में आए, जिससे हम वैल्यू एडिशन में बढ़ सके। हम मिल्क प्रोडक्शन में पहले स्थान पर हैं, पर वैल्यू एडिशन में हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। तो हम डेयरी फार्मर्स को, डेयरी इनपुट से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। डेयरी इनपुट के जैसे प्राइस की अनसर्टेनिटी होती है, जैसे ऑयल केक्स हैं और हैं, तो इन चीजों में प्राइस की अनस्टेबिलिटी होती है, क्वालिटी। और जैसे एक और अभी कंसेप्ट है कि कस्टमाइज फीड नहीं मिल पाता है फार्मर को as per the requirement of the breed. So there are issues with the veterinary doctor. I would like to tell you about a story in the veterinary services. हम अभी अपना जो मार्केट एनालिसिस कर रहे थे गुड़गांव एरिया में, तो वहाँ पे एक डेयरी में हमने विजिट किया। तो वहाँ पे वेटनरी सर्विसेज की कमी होने की वजह से एक जानवर को, जो हम ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, उसके वेस्ट में उसको ब्लीडिंग हो रही थी, और उसकी वजह से उसको कोई वेटनरी डॉक्टर अच्छा ना मिलने की वजह से उस जानवर का की मौत हो गई थी, और उस डेयरी फार्मर को 1,20,000 1,25,000 के करीब का नुकसान हो गया था। सो दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। तो इस तरीके के अगर डेयरी फार्मर को नुकसान होते रहेंगे, वेटनरी सर्विसेज इनएफिशिएंट मिलती रहेंगी, अनक्वालिफाइड डॉक्टर वहां पे आ रहा था बेसिकली, पर वो वहां पे उसको बस एंटीबायोटिक की डोज देके जा रहा था। तो हमने उसको दवाइयाँ एक बार चेक की, दवाइयों पे भी उसका 10-12 हजार रुपए का खर्चा जरूर आया होगा। एंड तीसरी जो प्रॉब्लम है, कंसल्टेंसी, देर इज नो सच company or platform who is giving consultancy to the farmer, so they can avail different schemes from the government, because the different state government are providing different schemes to the farmer for their promotion. So there is no customization of the farmer onto their profile, which kind of breed they should keep with them. And the fourth problem, the main problem, is the market linkage. So the price in the market go in this winter season, the price go as low as 19 to 20 rupees per liter for the cow milk. So how a farmer can be getting the revenue or the outcome from it? So there is a simple rule. If you are selling, if अगर आपको 20 रुपए का अगर खर्चा पड़ रहा है, दूध पड़ रहा है, और आप उसको 30 रुपए, 1.5 गुना उसका 1.5, तो उसको, उसमें आपकी बस आपकी जो खर्चे हैं वही निकलेंगे। अगर उससे ज्यादा में आप बेचते हैं तो उसके बाद आपका इनकम होनी शुरू होगी। तो 1.5 गुना आपका कम से कम प्राइस होना चाहिए उसका। अगर 20 रुपए खर्चा है तो 30 रुपए से ऊपर उसका खर्चा आपको बिक्री होनी चाहिए उसकी। सो मार्केट लिंकेज एंड दो जो हमने आउटकम वहां से निकाला, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस अनसर्टेनिटी थी कि प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है, और पुअर रेवेन्यू जनरेशन, जिससे फार्मर अपना बढ़ोतरी नहीं कर पाता है। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन टू द फार्मर। सो हम एक 360 डिग्री अप्रोच लेके आए हैं फार्मर्स के लिए, डेयरी सॉल्यूशंस के लिए। तो हम उनको स्टार्टिंग फ्रॉम द फीड बैलेंस, जो कि उनका सबसे बेसिक चीज है, फार्मर जहां से शुरुआत करे, जानवर जब हेल्दी होगा, अच्छा दूध देगा, तो उससे ही हमारा सारा बेसिक चीजें चलेंगी। तो उसके फीड से लेके हमने उसको अच्छा फीड, कस्टमाइज फीड उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फीड, अकेला कोई भी सरसों की खल, बिनोला खल, ये इसके साथ साथ हमने उनको मिनरल मिक्सचर, जैसे अमीनो, जैसे हमें हमें भी खाने के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो वैसे भी जानवर को भी वैसी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उन चीजों पे भी उनकी बैलेंस डाइट की तरफ उनको शिफ्ट करेंगे, और उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अच्छा गेन कर सके। वेटनरी सर्विसेज हम उनको डिफरेंट क्वालिफाइड वेटर्न्स डॉक्टर्स के थ्रू हम जाएंगे। तो हमने अपना एक डॉक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हमारे साथ कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जुड़े हैं अभी, जो हमें वीडियो कॉलिंग के साथ साथ फील्ड विजिट का, मंथली विजिट भी उस उनमें होगी, और फील्ड विजिट के साथ साथ वो उनको वीडियो कॉलिंग पे भी कंसल्टेंसी या उनको इमरजेंसी में उनको गाइड करेंगे। सो एंड जो ब्रीड डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, हम क्वालिटी सीमेन प्रोवाइड करने के लिए, कि जिससे अगर आज एक गाय या एक भैंस 10 किलो दूध दे रही है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन 12 से 15 किलो के बीच में दूध दे, तो उसकी बेटरमेंट है, उस ब्रीड का इम्प्रूवल किया जाए। तो इस तरीके से हम क्वालिटी सीमेन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इन द कंसल्टेंसी पार्ट, तो इसमें हमने कंसल्टेंसी पार्ट में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उसकी कोई भी ब्रांड डेवलपमेंट करके
जैसे एक क्लस्टर बना के फार्मर्स का, हमारा एक मोटो ये भी है कि फार्मर्स को एक क्लस्टर पे लाके, जस्ट अ सेकेंड। सो हम उनको एक क्लस्टर पे लाके और उनका एक पूरा कम्युनिटी बेस्ड उनसे फार्मिंग करवाएं, जिससे वो बेटर प्राइस पा सकें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से टाई अप करके या उनसे अच्छे से प्रिपेयर करके। अच्छा, दूसरी बात, हम उनके लिए, फार्मर्स के लिए, हम जैसे कोई भी स्कीम अवेल करने से पहले फार्मर को अपना फाइनेंसिस, उनका प्रोजेक्शन किस तरीके से अपनी वो यूज करेंगे, कितना उनको उनका कॉस्टिंग आएगी, तो इस तरीके से हम उनको उनका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में हेल्प करेंगे, जिससे वो अपना एक ब्रांड डेवलप कर सके, अपना प्रमोट कर सके डेयरी को। और डेयरी जहां आए, हम डेयरी आउटपुट की बात पे, जहां मिल्क की बात होती है, उसके बाद हम उनको बेटर प्राइस डिस्कवरी करेंगे, जिससे हम उनको अच्छा प्राइस दे सकें। हम इंडस्ट्रीज में इंस्टीट्यूशनल बायर कुछ अभी तक आइडेंटिफाई भी किए हैं और भी कर रहे हैं, जो उनको बेटर मिल्क प्राइस देंगे। Like you might have heard about the Caventer's milk and all these ready to drink milk which are good source of energy. So हम ऐसे कुछ बायर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो उनको मार्केट प्लेस अच्छा प्रोवाइड करेंगे। सो एंड डेयरी मैनेजमेंट की अगर मैं और बात करूं, तो मैनेजमेंट के लिए फार्मर को तीन चार चीजों का, चार पिलर पे ध्यान देना पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी जानवर की क्या है, उससे किस चीज पे, जैसे सीजन का है इम्पैक्ट कितना पड़ता है। दूसरी बात कि टाइम पीरियड, कि अगर आज हमारी भैंस या गाय कंसीव हुई है, तो 0 से लेके और 100 डेज तक उसकी क्या डाइट रहेगी। तो डाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, अभी अगर वो 100 से 200 दिन हो गए हैं उसको कंसीव हुए या बच्चा दिए हुए, तो उसके बाद उसकी डाइट किस तरीके से, क्योंकि उसकी डाइट में फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कमी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से चीजों का ध्यान रखते हुए टाइमली उसकी डाइट को अच्छे से तैयार करके, एक जो ट्रांजिशन फेज जो होता है किसी भी एनिमल के, उसके एनिमल के लिए, तो वो होता है उसके कंसीव करने के 21 दिन पहले और 21 दिन बाद। तो इन 42 दिनों की जो टाइम है, इस टाइम पे जब हम जानवर को पूरी रख रखाव करते हैं, उसको फुल डाइट देते हैं, तो उससे उसकी हेल्थ पे 90% बीमारियों का और अलग और प्रॉब्लम्स का इफेक्ट नहीं हो पाता है। So we will be providing them all the consultancy and so they can manage their dairy well. Just a second, I am not. So this is our market survey area, and we have conducted our market survey in Delhi NCR area, Gurgaon region. And in cattle feed market, we have observed a 15% growth, compound annual growth rate. And in veterinary services, we have seen a 5% CAGR. बट मैं बताऊं कि अभी मेरे एरिया में वेटनरी डॉक्टर्स कम से कम मेरे घर से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी से आता है, और वो भी उसको कॉलिंग करने के लिए, कॉलिंग करने के बाद वो हमारे यहाँ पे पहुंचता है। शायद आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम होगी, वेटनरी डॉक्टर्स इतने नहीं हैं, और हैं भी तो इतने क्वालिफाइड नहीं है, मार्केट में घूम रहे हैं पर इतने क्वालिफाइड नहीं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वो एनिमल की डेथ ही हो गई थी उससे। तो ऐसी कुछ हमने चीजें यहाँ पे अपने सर्वे में भी ऑब्जर्व की। हमने 9 डेयरी फार्म्स के साथ अभी कनेक्शन किया है, 3 एफपीओज के साथ हम अभी जुड़े हैं, और एक फार्मर मीट हमने किया है जो एफपीओज के डायरेक्टर्स जिसमें प्रेजेंट थे। तो उससे हमारा आउटकम क्या रहा कि सबसे पहले तो अनसेटिस्फाइड वेटनरी सर्विसेज है, कि वेटनरी सर्विसेज फार्मर को अच्छे लेवल पे नहीं मिल पाती हैं। किस तरीके की उनको वेटनरी सर्विसेज मिलनी चाहिए, या जिससे वो उनको दिक्कत ना हो, कि जानवर उनका दिक्कत में ना आए या खराब ना हो। उनका अगर 2-3 दिन का भी अगर बुखार किसी जानवर को होता है, तो उसकी ईल्ड में कितना लॉस होगा और फार्मर को इकोनॉमिकली कितना लॉस होगा। दूसरी बात आती है पुअर कैटल फीड। Poor cattle feed, there is so much, the quality concern is lot in the cattle feed, the oil content, the oil percentage, how much is the oil percentage in the cattle feed. So there were a lot of issues regarding to the cattle feed as well. Customized feed, like we will be, there should be a availability of silage in the dry period, the when there is no green fodder in the area, so there should be a silage production.
तो इस तरीके की चीजें उनको कोई मिल नहीं रही थी, कोई एडवाइजरी नहीं मिल पा रही थी। तीसरी बात, जो एडवाइजरी देने के लिए, कोई भी कंसल्टेंसी करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि भाई उनको बता पाए कि इस जानवर के लिए, जैसे अब हम रियर कर रहे हैं जानवर का और एक फार्मर का एक लगाव होता है, तो उसके लिए वो उसको बेचता नहीं है या उसको रखता है, पर उसको उसकी कॉस्टिंग नहीं निकालता। तो इन चीजों में उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी। अच्छा, जो हमारे सर्वे से हमने पाया कि 100% जो फार्मर थे वो अपनी डोर स्टेप डिलीवरी, अपने हर एक फीड की या मशीनरी की या हर चीज की, वो 100% ईगर थे अपनी डिलीवरी को डोर स्टेप के लिए, जिससे वो अच्छे से हम रीच कर पाए और उनसे कनेक्ट कर पाए। एंड वी हैव ऑल्सो फाउंड few progressive farmers who were eager to invest 2 to 4 lakhs rupees in their building up over their upgradation of their farm in the coming time. So these are 7 USPs that our startup have. So we have a holistic approach toward the dairy system, whatever the problem that farmer is facing. तो हमने एक इसी तरीके से इसको डिजाइन किया है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए कि हम फार्मर तक कोई भी उसको परेशानी आती है, उसको फीड से लेके उसकी मार्केट तक, तो हमने उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। कस्टमाइज फीड, जैसे कई कई चीजें होती हैं, साइलेज है, अल्फा अल्फा है, तो इस तरीके की इन चीजों से न्यूट्रिशन वैल्यू जो फीड की है वो बढ़ती है। तो इन चीजों को उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाना कई एरिया में, जैसे हमारे यहाँ जो हमने पाया हरियाणा या दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो यहाँ पे कई फार्मर्स ने ग्राउंड नट या सोयाबीन इस तरीके की रिक्वायरमेंट की थी, पर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। जो रिटेलर्स हैं उनके पास इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है कि वो फार्मर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द डोर स्टेप डिलीवरी। अलोंग विद दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग देम द मंथली चेकअप। जैसे एग्रीकल्चर में होता है सोयल हेल्थ कार्ड होता है, उसी तरह हम कैटल हेल्थ कार्ड, जिससे फार्मर अपना रिकॉर्ड कर सके कि भाई ये जानवर कितना खा रहा है, कि कब इसकी साइकिल पूरी होती है, कब ये हीट में आता है, जिससे उसके पास अच्छा सा एक रिकॉर्ड रहे, जिससे वो अपना साल के एंड में उससे सारा का सारा एनालिसिस कर सके। इमरजेंसी डॉक्टर ऑन कॉल वी विल बी प्रोवाइडिंग देम, जिससे कि उनको वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी, कि फार्मर अगर रीच करना चाहे हमें, वीडियो कॉल के थ्रू भी हमें रीच कर सकता है। हम उनके लिए इंडस्ट्रियल डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम उनके लिए लाएंगे, फ्री कंसल्टेंसी एज ए कंसल्टेंस हम इंडस्ट्री हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो अपने मिल्क को अच्छे से बेच पाए अच्छे प्राइस में। सो दिस इज अवर टाइमलाइन। हमने फरवरी में हम एक बीकानेर में ही हम एक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, एक कैटल फीड कंपनी है, वहां से हमने अपना आइडिया जो हमें लगा था कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, तो कैटल फीड से हमने ये प्रॉब्लम देखनी शुरू की, और हमने देखना शुरू किया कि वहां से लेके और मार्केट लिंकेज तक क्या क्या दिक्कतें एक फार्मर फेस करता है डेयरी में। तो हमने वहां से शुरू किया था। उसके बाद हमने आइडिएशन अपना किया, टीम बिल्डिंग किया, फिर हम नियाम के साथ एसोसिएटेड हुए, नियाम के अंडर हम इंक्यूबेट हुए। वहां पे मार्केट रिसर्च के साथ साथ हमें मेंटरशिप दी गई, तो हमारी वेबसाइट हमने डेवलप की, फार्मर्स तक हमने रीच की। तो इस तरीके से एक डेयरी फार्म्स को पूरा मैनेज करने के लिए इन 4-5 चीजों का फार्मर को ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ अपने, अभी जैसे शिफ्ट हो रहा है कि अनटच्ड मिल्क का एक नया कंसेप्ट आ रहा है मार्केट में, कि फार्मर का सोर्स, एक ट्रेसिबिलिटी, एक नई टर्म आपने सुनी होगी। तो ये ट्रेसिबिलिटी का, अनटच्ड मिल्क का, इस कोरोना के बाद इस तरफ भी मार्केट शिफ्ट होगा। तो इन तरीके की चीजों पे ध्यान देके डेयरी फार्मर्स अपना अपग्रेडेशन कर सकते हैं, मिल्किंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपना अपग्रेडेशन करने के लिए, या अपना हर्ड साइज बढ़ाने के लिए, कैटल्स का साइज बढ़ाने के लिए। सो हमारा ये, हम कैसे हम ग्रो करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी वेटनरी डिफरेंट कंपनीज के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, कैटल फीड के साथ भी, वेटनरी के साथ भी, वेटनरी मेडिसिन के साथ भी। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे फार्मर के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज ला रहे हैं। उसके साथ साथ हम टेक्निकल अपग्रेडेशन ऑफ फार्म, सो दे कैन upgrade their farm in a better way,
और उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी का यूज करके और अपने फार्म को एक बड़े लेवल पे ले जा सके। उसके साथ साथ हम एक इन द सेकेंड ईयर वी आर प्लानिंग फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन, सो दे कैन order us or they can reach to us with this, and we will be executing the CSR activities as well from different organizations, and we will be reaching to the farmer, and in upcoming time there might be a possibility, so we will be connecting with the farmers at a large level. So this is the social impact. This is the main focus of our startup. The farmer, the how much impact we are making in their lives. In the farmer side, we have three segments. हम जैसे इस पिलर में देख रहे हैं, इस पिरामिड में देख रहे हैं, तो बॉटम पे हमने सबसे पहले फार्मर पे हमारा फोकस रहेगा कि हम उनके बेटरमेंट के लिए हम काम करें, उनको सारी मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करवा सकें कि किस तरीके से आप अपने ब्रीड का चुनाव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फोडर का जानवर के लिए किस तरीके से रख सकते हैं। तो इन चीजों का हम उनको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनकी कॉस्ट में रिडक्शन आए और हायर इनकम हो। हम क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस करेंगे, जिस जैसे सरकारें आजकल काम भी कर रही हैं एफपीओज के साथ, एफपीसी फार्म प्रोड्यूस कंपनी, तो इनके साथ भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपने प्रोड्यूस को एक बल्क क्वांटिटी में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रीच करके वहां पे अपना नेगोशिएट कर सके बेटर प्राइस के लिए, and upgradation of their farm will automatically lead to their more income to them. And in the consumer side, the consumer is in the between, so we will be impacting the consumer in a betterment, and there will be unadulterated milk, so we will be reaching out to them, and moreover we will be delivering the value for their money. ट्रेसेबिलिटी, जैसे फार्म पे किस कहाँ से उनका दूध आया है, कैसे वो दूध एक हमें विजिट भी कर सकते हैं हमारे फार्म पे, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ facilities to the consumer as well. In the societal, we will be generating the employment in the rural India, and we will be training few semi-skilled people in the rural India, so who have some knowledge about the dairy sector, and we will be providing them training, and so they can get the employment, and we will be improving the cattle health as well. So this is our social impact, how we will be making the impact on the society, and how we will be doing the betterment of the farmer. This is our team, and we are 5 agripreneur students from IABM Bikaner, and we are into this startup from this August, and we have registered our company as Better Milk Private Limited. Myself, Gaurav Sharma, and Harsh Chaudhary, Akshat Mishra, Yogesh, and Parvinder are my peers. So thanks a lot, and I think I'm done with the presentation. And thanks a lot. So the further you can have the question. Hello. Yeah, thank you, Mr. Gaurav Sharma. Now I would request all the participants to unmute and raise their questions one by one, or you can also write your question in the chat box. Please, uh, Gaurav Sharma ji, please remove your slide for. Hi, everybody. Hi. I have a question here. So, first of all, congratulations for setting starting. It's really Yeah, great please, ma'am. initiative from this. So, I am Soumya. I represent Agnex Technologies. So, my question is that as Mr. Gaurav was talking about politics, and we will be, you know, uh, rising working around the unadulterated milk as well. Be working towards the doing the adulteration as well and providing a good amount to the farmers. So, how you will be, making it sure? I mean,
that the farmers are not doing any activity of such kind, putting up barrier on as because this is one of the major problems faced throughout nowadays. Yeah, that's a good question. I think, is there something more you are asking? That's it. That's it. Okay. So that's a good question, Soumya. And I would like to say that, so that's why we are implementing from the starting level. So we will be providing how we will be doing this, कि हम स्टार्टिंग लेवल से ही उनको ट्रेस करना शुरू कर रहे हैं कि उसको क्या इनपुट दिया जा रहा है, उसको कैसी वेटनरी सर्विसेज दी जा रही है। अच्छा, फार्मर लेवल पे जो है, हमारे साथ फार्मर जब कनेक्टेड है तो वहां पे, जैसे आप एगनेक्ट से हैं तो आपके शायद को फाउंडर मिस्टर तरनजीत सिंह है, आई थिंक। तो Yeah. सर के साथ भी मेरी कई बार, मैं गुड़गांव में मिला था उनसे, तो उनके साथ भी ये डिटेक्शन के लिए और इस तरीके की हमने उनके साथ भी बात की थी कि जिससे हम मिल्क का हम अडल्ट्रेशन या और उसमें इम्प्योरिटीज को चेक कर सकें। तो हम इस तरीके का वहां पे फार्म लेवल पे ही हम कुछ जैसे क्लस्टर बिल्ड करके, आप जैसे एजी नेक्स्ट है या और कंपनीज हैं, उनसे उनके साथ टाई अप करके हम एश्योर करेंगे कि हम फार्मर्स को या कंज्यूमर्स को हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा पाए। एक क्लस्टर बेस्ड हम डेवलप करेंगे, वहां पे हम अपना एस्टेब्लिश करेंगे एक, so we can check the quality of the produce. Mr. Gaurav, I think I would like to connect with you. Yeah, sure ma'am. Can share your details. Okay, I will share my contact number and my email as well. Any other questions? Hi, Gaurav. Hello. Yeah, so my question is, you have mentioned that you are going to ensure traceability in milk. So what are the technologies you are going to use to ensure traceability? To ensure the traceability, Sai, we will be giving when we will be going into the delivery of the produce to the consumer. So we will be developing our own app, so the farmer can reach to the app and they can find the QR code system, and from there they can find that source of the farm from where the milk is being delivered to them. So we will be providing such kind of facilities in the coming time, but as of now we are into the, firstly we are starting from the cattle feed and the veterinary services. So we will be reaching out to the farmer and we will be reaching out to the consumer in the coming time. So we are planning for this, and in the coming time we will be giving for the traceability as well. Thank you, Gaurav. Thank you. But are you going to implement blockchain technology or some other technologies like that in future? We are thinking of IoTs, and we will be, there is a company called Stellabs, you might have heard about it. So they are doing this kind of things, and we are also connecting with few IT people so they can help us out. So we will be connecting with them and then we will be delivering the traceability part in it. Okay, Gaurav. Thank you. Thank you very much. Any other questions? Yeah, Mr. Gaurav, from my side, my question is कैटल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे सर, क्या क्या होता है इसमें, किसान इससे कैसे लाभ ले सकते हैं? सर, कैटल हेल्थ कार्ड जो हम अभी मतलब जो प्लान कर रहे हैं कैटल हेल्थ कार्ड में, कि जानवर का फीड क्या दे रहे हैं हम उसको, कितनी क्वांटिटी में ड्राई फूड है, कितनी क्वांटिटी में कंसंट्रेट है, या उसके साथ साथ कब वो कंसीव हुई थी। जैसे फार्मर के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता है, या मेरे घर पे भी एनिमल्स हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं होता है कि कब लास्ट टाइम कंसीव हुई थी, या उसकी एआई कब हुई थी, वो हीट में कब आएगी, या इस ये चीजें रिकॉर्ड में रखने से फार्मर को एक हेल्प हो जाती है
कि फार्मर के पास एक डाटा होने के बाद वो अच्छे से उनको हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके की हम उनको प्रोवाइड करेंगे, कैटल का वेट कितना है, उसका फैट कितना है, इस तरीके की चीजें हम उसकी एज पर द बॉडी वेट, एक बीसीएस नाम से बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, उसके हिसाब से कि जानवर के का वेट कितना है, उसके हिसाब से उसका फीड कितना डालना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें हम उस कैटल हेल्थ कार्ड पे मेंशन करने की प्लानिंग में। जी। एक थोड़ा सा आप अपनी कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएंगे, जिससे कि थोड़ा सा वो आपकी बेटर मिल्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। सर, हम कंसल्टेंसी के पार्ट से जैसे फार्मर को हम फीड से स्टार्टिंग करते हैं, फीड से कि कैसे फीड उनको प्रोवाइड करना चाहिए, कि बैलेंस डाइट वो कैसे बना सकते हैं, या साइलेज का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, जानवर को रेयरिंग के लिए अच्छे कौन से, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं जो 12 मंथ्स के थ्रू आउट चलती हैं, 12 महीने चलती हैं, तो ग्रीन फोडर की फार्मर्स के लिए अवेलेबिलिटी रहती है, अल्फा अल्फा है, कुछ और क्रॉप्स हैं। तो इस तरीके की हम उनको कंसल्टेंसी के साथ साथ हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि वो अपना कहाँ पे प्रोड्यूस बेच सकते हैं, उनको मार्केट लिंकेज के साथ साथ कि भाई ब्रीड कौन सी रखनी चाहिए, कि कौन सी ब्रीड का सिलेक्शन कैसे करें। तो इन चीजों पे हम उनको कंसल्टेंसी देंगे उनका ब्रांड डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीजें हमारे कंसल्टेंसी पार्ट में है। तो सर इसके लिए आप फील्ड लेवल पे क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, फील्ड लेवल पे हम कंसल्टेंसी के लिए जैसे डिफरेंट फार्मर्स के हम ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे जाके हम अपनी मीटिंग कंडक्ट करवा के उनको सारा जानकारी देंगे कि क्या क्या कैटल को क्या क्या फीड में डालना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए आपके फीड में। तो इस तरीके के हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं डिफरेंट एफपीओज के डायरेक्टर्स को के साथ मीटिंग करके, कि उनके क्लस्टर के हम पहुंच पाए। तो इस तरीके के हम प्रोग्राम्स अभी दिल्ली एनसीआर एरिया में कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया। मैं पार्टिसिपेंट से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने यदि कोई क्वेश्चन है संबंधित सर से, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, किसान मित्र के माध्यम से अपनी डेयरी से संबंधित, पशुओं से संबंधित, हेल्थ कार्ड से संबंधित आप अपना क्वेश्चन या प्रश्न रख सकते हैं। तो प्लीज़, जिससे कि अपने Hello. हेलो, Hello. Good afternoon, sir. Sir, गुड that was आफ्टरनून। very good presentation and very good business idea, according to my opinion. Of course, definitely farmers will get benefited in the future. But sir, my question is like, if I am a farmer, so initially, what was the procedure and what are the initiative from my side by which I can get benefited by your services? सो रवि, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। एंड हमारा एक क्राइटेरिया है कि जैसे स्टार्टिंग लेवल पे अभी इंडिया का जो क्लस्टर पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, कि क्लस्टर लेवल पे हम डेयरी को जो टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल डेयरी को, वो हम 25 कैटल मिनिमम होने चाहिए उनके पास जो डेवलपमेंट की, या क्लस्टर अगर वो डेवलप कर रहे हैं, अपना एक एफपीसी या एफपीओ बना रहे हैं एनिमल का, या अपना एक एनिमल का हार्ड साइज, उसमें 100 कैटल्स कम से कम होने चाहिए, जिससे हम उनको फैसिलिटीज अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके। अगर एक कैटल है या 2 कैटल है, तो उसके लिए हमें मार्केटिंग करने के लिए, तो इन चीज, क्योंकि प्रोडक्शन जब अच्छा होगा तो उसके लिए हम फैसिलिटीज भी अच्छी प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो हम तक हमें रीच करने के लिए कम से कम 25 कैटल एक डेयरी के पास हम फाइंड करें, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी। तो आप हम हमसे कोई भी सर्विसेज रीच करने के लिए हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। तो आप मतलब कम से कम हमारा क्राइटेरिया ये है कि 25 आपके पास कैटल हो इंडिविजुअल डेयरी फार्म पे, और 100 कैटल हो आपके क्लस्टर में। Okay. Thank you so much, Gaurav. थैंक यू। any other questions from Yes, Gaurav, it was a really good presentation. And my question is that are you working on making any FPOs or you are promoting for the formation of clusters in the dairy sector? Because in India, many farmers are having 1 or 2 cattle. Yeah, that's why Harshit, we are planning for the development of FPOs. We are going village to village and we are meeting with the sarpanch and the village level, the peoples in the village, so they can get to themselves together
जिससे वो एक साथ इकट्ठा हो सकें। कुछ एफपीओज हमने आइडेंटिफाई भी खुद भी किए जो पहले से काम कर रहे हैं, और नए भी हम फार्मर्स को अवेयरनेस करके कि क्या स्कीम्स दे रही हैं सरकारें एफपीओ बनाने पे, कितनी सब्सिडीज या और फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रही है, तो उन चीजों के थ्रू हम फार्मर्स को अवेयर करके उनका एफपीओ जनरेशन में भी काम कर रहे हैं। Okay, Gaurav. Any question? Any other question related dairy production from farmers? Oh, okay. थैंक यू गौरव, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है किसानों के लिए जो कि उसका लाभ लेंगे सर। once again I would like to thank you, you Mr. Gaurav Sharma. Your presentation provided us with deep insight. Many thanks for sharing your invaluable experience in agriculture technology. Participants got benefited from your talk. At last, I would like to thank you everyone for sparing their valuable टाइम विद अस। थैंक यू गौरव, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में बातचीत करके और आपके साथ डिस्कशन करके। मैं समझता हूँ कि सभी किसान भाई आपकी इस इनिशिएटिव का भरपूर लाभ लेंगे और संपर्क में रहेंगे आपसे। थैंक यू, थैंक यू गौरव, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू एवरीवन। ओके। Thank you, sir.